Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla. So let's start our discussion for the satellite communication. I hope you are well. So in our previous discussion, we come to know what are the basic elements required for establishment of the communication. What are the links through which one user is going to communicate with the other user? I have told you there are three major elements, likewise earth station, user, along with it terrestrial system. This section is common for the transmitter section and the receiver section. But when we have a look for the earth station, that may differs for the transmitter section as well as for the receiver section. The blocks which are defined for the transmitter sections, we have also discussed about it, and the blocks required for the receiver section earth station, we have also gone through that. One thing I have told you, I have ended up my session with a few seconds discussion about the baseband signal. So let's start from that point. After it all, we will go for the discussion. So I have written baseband signal. I have used, and dear students, I have told you the importance why we say this baseband signal is called a message signal. Dear students, I have told you that the relation with the frequency with that of bandwidth is equals to fH minus fL. The difference of these two frequencies, higher frequency as well as the lower frequency. And the benefit of the baseband signal is the bandwidth is just equal to the higher frequency itself. बैंडविड्थ को जो हम डिफाइन करते हैं वो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करते हैं. कोई भी सिग्नल है, लेट्स सपोज दिस इज द सिग्नल, दिस इज व्हाट 2 किलोहर्ट्ज एंड दिस पार्ट इज 7 किलोहर्ट्ज. दो फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पे पॉइंट किया. लोअर फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज and upper frequency is somehow 7 kilohertz. So the bandwidth of it will be what? 5 kilohertz. Yes. Bandwidth कितनी हो जाएगी according to this formula? 5 kilohertz. This is the one case, and that is not the baseband signal actually, dear students. When we are talking about the baseband signal, that will be like this. Here the upper frequency or the high frequency fH is 5 kilohertz and the lower frequency is 0. And when we are going to calculate the bandwidth of it will be the difference of this 5 and 0 will be 5 kilohertz. That means जो bandwidth हुई वो डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगी. Bandwidth is 5 kilohertz in this case also. Bandwidth is 5 kilohertz in this case also. दोनों केसेस में जो बैंडविड्थ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम है, 5 किलोहर्ट्ज ही है. लेकिन यहाँ पे इस केस में जिसको हम बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल बोलते हैं, इस केस में बैंडविड्थ डायरेक्टली हाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. लेकिन इस केस में बैंडविड्थ हाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल बिकॉज नहीं है, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी is 7 kilohertz but the calculated bandwidth is 5 kilohertz. So it is not equivalent. तो ये बेनिफिट हो जाता है हमारा जब हम बेसबैंड सिग्नल लेते हैं. बेसबैंड सिग्नल इज सेड टू बी डायरेक्टली इक्वल्स टू द हाई फ्रीक्वेंसी. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया अबाउट दिस baseband signal, and after it all I have told you, I hope you remember that when
we transmit the signal, the frequency for that transmitted signal is different, and the frequency for the reception of the signal, same signal, is quite different. First, we will have a discussion for the benefit of the standard we are going to follow. After it all, I will told you in the same video lecture that why we used to do, क्या रीजन उसके पीछे कि हम जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है that is kept low comparatively to the uplink frequency, जिस फ्रीक्वेंसी से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे डेटा को हम अपलोड कर रहे हैं, that is called uplink frequency, और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, डिस्टेंस, that is called डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी. तो क्यों कम रखते हैं हम? We will have a discussion for that. But before it, we have to know that what is the standard we are going to follow, जहां पे हम ये डिफरेंस को जानना है. So there are three standards mainly: 6 by 4 gigahertz band, 14 by 12 gigahertz band, and 30 by 20 gigahertz. So, dear friends, let me write first of all. Let me show you that I have told you for 14 by 12 gigahertz band, we have range like 12.75, say 14.8 gigahertz, and 10.7, say 12.3 gigahertz. Similarly, for 30 by 20 gigahertz band, we have 27.5 to 31 gigahertz and 18.1, say 21.2 gigahertz. This is uplink frequency, and that one is downlink frequency. Similarly, this is uplink and this is downlink. And there is one 6 by 4 gigahertz band. Yes, friends, ये रेंज है जिसको हमने बैंड नाम दिया. फ्रीक्वेंसी की ये रेंज है 12.7 से 14.8. मींस हमारे पास तीन स्टैंडर्ड है. Among these three, we are going for this 6 by 4 gigahertz band. For the commercial communication, we go for this standard 6 by 4. Why we are going? इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे. And then we have no doubt regarding the standard which we are going to follow. इस तरह से रेंज होती है, जिस रेंज के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं दिस इज 14 gigahertz and this is 12 gigahertz, this is 30 gigahertz, this is 12 gigahertz. Sorry, this is 30 by 20. I'm sorry. From here. तो जो इसमें न्यूमरेटर का पार्ट होता है, this is in fraction p by q form, 14/12 30/20 या 6/4. तो जो इसमें 14 by 12 का न्यूमरेटर जो बताता है that represents uplink frequency which is in gigahertz. तो I am saying band क्योंकि ये रेंज है. तो इस रेंज का कोई भी सिग्नल है उसको हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट करना होगा अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं. सिमिलरली 6 by 4 में भी अगर जो रेंज है उसकी भी अगर हम वैल्यू सेट करनी है तो उसको भी हमें 6 पे ले आना होगा. And that basically do by up converter or down converter. If some frequency which is high from this 6 gigahertz, we have to down convert it at 6. Or if it is less than 6 gigahertz, we have to up convert it at 6 gigahertz. Similarly, in the reception section and the receiver section, if somehow the frequency is above this 4, so we have to down convert it. If it is less than 4, we have to up convert it.
Similarly the things are being done. तो इस बीच इन तीनों स्टैंडर्ड के साथ हम जनरली जो फॉलो करते हैं, वी फॉलो 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड. That is clear. So let's start with the advantage of this 6/4 gigahertz. Let's start with the advantage. Advantage of 6/4 gigahertz band. There are lots of many advantages are there, but we will discuss few of them which are having more importance. In which the first one is, the first advantage for 6/4 gigahertz is, it is, if we are taking this band, so we say in this band there is no absorption by the ray. अगर हम 14/12, 30/20 गीगाहर्ट्ज बैंड को यूज करते हैं, तो इन दोज बैंड्स 14/12 और 30/20, इन दोज बैंड्स जो सिग्नल है दैट आर badly affected by the rain, means due to that rain the signal are absorbed, but this becomes the advantageous for 6/4 gigahertz band. There is no absorption by the rain. I have told you in my radar lectures कि how these things, rain, cloud, affect the signal. छोटा सा एग्जांपल, जब आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब बारिश होती है या आंधी तूफान आता है, the strength of the signal get weaks. बारिश के मौसम में भी आप देखेंगे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है, बिकॉज जो ट्रांसमीटर होता है, जो ट्रांसमिट करता है, वो नहीं चाहता कि जो स्ट्रेंथ से, जिस पावर से वो सिग्नल का ट्रांसमिशन किया है, उससे पावर लेस होकर आप तक पहुंचे. जो इंफॉर्मेशन वो कन्वे करना चाह रहा है, उस इंफॉर्मेशन का पार्ट कुछ भी लॉस बिल्कुल नहीं चाहते. बट एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड. जो अर्थ स्टेशन है, दैट में से कि वो 90%, 95% हमारे हाथों में है कि हम उसमें से कुछ भी पार्ट रिमूव कर सकते हैं. अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ सही कर सकते हैं. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उन इश्यूज को हम क्लियर कर सकते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग टू क्लियर द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं. लाइकवाइज नॉइज व्हिच इज अडॉप्टिव इन नेचर, सिग्नल को अडॉप्ट कर लेता है, उसके नेचर को अडॉप्ट करता है, उसके साथ जुड़ के फर्दर वो प्रोसेस होके आगे चला जाता है. दैट्स व्हाई वी यूज नो फिल्टर टू रिमूव दैट पार्ट. बट दैट नॉट बिकम्स द केस ऑफ आइडियल. 100% हम उसको रिमूव नहीं कर पाते नॉइज, बट वी ट्राई. हम ट्राई करते हैं जितना परसेंट हो सके. तो आई मीन टू से कि एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड. तो अब क्या होता है कि अगर बारिश होती है तो ड्यू टू दैट क्लाउड है जहां पे डिफरेंट तरह के गैसेस अवेलेबल है, वो गैसेस सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आयंस है, उनसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सिग्नल स्ट्रेंथ स्कैटर्ड होने लगते हैं. तो ये सब फैक्टर्स बन जाते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक होने की. तो ये कहते हैं कि फर्स्ट एडवांटेज होता है 6/4 गीगाहर्ट्ज का कि देयर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द रेन. कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है रेन. और बाकी का अगर हम बात करें बाकी स्टैंडर्ड्स का, तो ये सब केसेस आते हैं कि वहां पे पार्ट जो है सिग्नल का वो एब्जॉर्ब होने लगता है. तो ये रहा पहला एडवांटेज. दूसरे की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इट हैज लोवेस्ट प्रोपगेशन प्रॉब्लम. जो प्रोपगेशन डिले होता है वो प्रॉब्लम कम होता है 6/4. ठीक है, लोवेस्ट प्रोपगेशन डिले.
lowest propagation problem. ये भी जो है आपका 6/4 का एक एडवांटेज बन जाता है कि अगर वी आर गोइंग टू यूज 6/4 तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता बिकॉज एटेन्यूएशन इज लो बिलो 10 गीगाहर्ट्ज। 10 गीगाहर्ट्ज पे अगर लो की हम बात करें, क्योंकि अगर दोनों स्टैंडर्ड को हम देखें तो 10 गीगाहर्ट्ज से ये सब अवेलेबल है। 14 गीगाहर्ट्ज दैट इज आल्सो मोर देन दैट ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। 30 गीगाहर्ट्ज की बात करें दैट इज आल्सो, दिस इज द स्टैंडर्ड 6 गीगाहर्ट्ज दैट इज लेस देन दैट ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। तो एटेन्यूएशन की जो प्रॉब्लम आती है वो 10 गीगाहर्ट्ज के लेस पे वो कम आती है। मींस योर सिग्नल विल नॉट बी एटेन्यूएटेड इफ यू आर गोइंग टू यूज this 6/4 and that means is the same less attenuation. We can simply say less attenuation. This is the second advantage of using 6/4. If we are talking about the third advantage, we say there is no change of polarization. There is no change of polarization. अगर हम पोलराइजेशन की बात करें अदर के कंपैरेटिवली तो इस स्टैंडर्ड में 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड के स्टैंडर्ड में कोई पोलराइजेशन का चेंज नहीं होता। लेट्स सपोज इफ यू हैव अ लाइट लेते हैं, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं, अगर हमने लीनियरली वर्टिकली पोलराइज करके लाइट को कहीं सेंड किया और अगला जो पार्ट हम रखते हैं वो हॉरिजॉन्टली रख दें तो उसकी पोलराइजेशन चेंज हो जाएगी लाइट की। जैसे सपोज एक हमने स्लिट लिया, एक स्ट्रिप लिया और उसमें हमने हॉरिजॉन्टली पोलराइज किया। सपोज यहाँ पे हमने कोई लाइट को पास किया और ऐसे हमने स्लिट बनाया, ये लाइट यहां से पास हुई और अगला अगर हमने ऐसे बना दिया, इस तरह कर दिया, ये हमने वर्टिकली किया था और इसको हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया, ये ऊपर पार्ट, तो यहां पे जब लाइट जाएगी तो दैट पार्ट इज गेट रिफ्लेक्ट। तो पोलराइजेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम का केस आ सकता है। तो सिमिलरली वी से कि देयर इज नो चेंज ऑफ पोलराइजेशन इन दिस बैंड, इस बैंड में कोई पोलराइजेशन नहीं। If we are talking about the fourth advantage, we say कि sky noise is low at 4 gigahertz. We say कि जो फोर्थ एडवांटेज है कि स्काई नॉइज की बात कर रही है स्टूडेंट्स, तो स्काई नॉइज इज मच लो एट 4 गीगाहर्ट्ज। इस स्टैंडर्ड में 6/4 में अगर 4 गीगाहर्ट्ज की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जो स्काई नॉइज होता है इसके केस में बहुत कम होता है और इसका बेनिफिट होता है कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है दैट इज नॉट दैट डिफाइंड, दैट इज नॉट इफेक्टिव। हेंस SNR जो वैल्यू है that not can be disturbed, signal to noise ratio, and we always know for the communication point of view the SNR value should always be high. तो SNR की वैल्यू डिट्रॉइड ना हो, चेंज ना हो, for that we have to follow the standard 6/4 gigahertz. And when we are talking about the sky noise, that means जो प्लेन्स जाते हैं इधर से उधर उनकी वजह से नॉइज क्रिएट होता है एंड दैट नॉइज में आल्सो डिस्टर्ब द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। नॉइज किसी प्रकार का हो, सिग्नल की स्ट्रेंथ को वो वीक कर देगा। पर ये स्टैंड अगर हम फॉलो करते हैं तो इस केस में दैट इज लो। आई हैवंट टोल्ड यू कि स्काई नॉइज बिल्कुल जीरो हो जाएगा,
मैंने बताया आइडियल केस होता ही नहीं है कि नॉइज को हम जीरो कर सके, कभी भी नहीं, नेवर। बट दैट मे बी लू if we are using 6/4 gigahertz band, and if we say the fifth advantage, it is easier to generate power at 4 gigahertz. अगर हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में 4 गीगाहर्ट्ज इस स्टैंडर्ड में अगर हम 4 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो इसका एक और फायदा होता है कि इस केस में पावर का जनरेशन जो होता है, हाई पावर का जनरेशन जो होता है वो आसान होता है। और अगर हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं तो इट बिकम क्वाइट टफ टू जनरेट अ हाई पावर एंड वी आर इन नीड ऑफ हाई पावर। हम चाहते हैं कि हमने जिस पावर का सिग्नल ट्रांसमिट किया है उसी पावर का सिग्नल सिमिलरली हमारे पास अर्थ स्टेशन पर रिसीवर सेक्शन में रिसीव। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम इसी एम के साथ हाई पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। इस केस में इट बिकम्स 6/4 गीगाहर्ट्ज के केस में इट बिकम्स इजी टू जनरेट अ हाई पावर। So these are the few advantages of 6/4 gigahertz band. If to talk about the disadvantages, advantage है 6/4 का, so there is also a disadvantage of 6/4 gigahertz band. The first disadvantage is interference from other users. Interference from other users is more. इस वजह से अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इस 6/4 गीगाहर्ट्ज के बैंड में इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, because this is universally followed by many of the countries. We are not talking, I haven't told you that this is the standard which is basically followed by India. Generally frequency का allotment, satellite का application, particular frequency पे, that may differ from country to country. But few of the standards are there which is followed by most of the countries. जैसे मैंने बताया there are 3 standards, 14/12, 30/20 और 6/4, among which 6/4 gigahertz band is mostly preferable. And why? I have mentioned you by this 5 advantages of it. There are lots of more advantages, but among those this 5 advantages are major one. तो ये एडवांटेज हर एक कंडीशंस पे है। ऐसा नहीं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। आई मीन टू से कि दिस 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड स्टैंडर्ड इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो अब जितने ज्यादा कंट्रीज होंगे उतने नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के अगर 6/4 को हम बोल रहे हैं कि every country will follow, so number of users will also increase, and due to that increase in the number of users there will cause interference. So there becomes a drawback that interference from the other users get increased or more. And the second one is direct reception. Direct reception in home TVs is not easily possible. Because of the need of big size
This is one of the major disadvantage that in the case of direct reception in home TVs, जैसे मैंने बताया था कि जो सैटेलाइट की सर्विस है या सैटेलाइट से जो सिग्नल हम लेते हैं, that can be taken directly or indirectly. Indirectly जैसे मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, that is indirect case. But when if we have a look for our dish antennas which we are using, the services provided by the satellite or by the many of the vendors, Tata Sky है, Videocon है, ये सारे सर्विस जो देते हैं और उसके लिए हम एंटीना घर पे लगवाते हैं, वो सैटेलाइट से डायरेक्टली सिग्नल का रिसेप्शन करते हैं। वो नहीं पॉसिबल है इस स्टैंडर्ड में 6x4 गीगाहर्ट्ज के स्टैंडर्ड, बिकॉज फॉर दैट क्योंकि बीम विड्थ नैरो है, तो नैरो होने की वजह से जो यहाँ पे एंटीना की साइज है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि घर हो हमारे 2 कमरे का और एंटीना की साइज हो 5 कमरे बराबर। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो 6x4 गीगाहर्ट्ज बैंड से डायरेक्ट रिसेप्शन आप कर सकते हैं, बट दैट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर द फ्यू ऑफ, हर के साथ तो ऐसा केस हो नहीं कि हर एक यूजर 2 कमरे का घर बना के 5 कमरे बराबर जो है वो एंटीना बना के रखा हुआ है, हर के साथ तो ऐसा कंफर्टेबल होगा नहीं, सुटेबल होगा नहीं। तो इस वजह से डायरेक्ट होम रिसेप्शन के केस is not become easy to receive the signal via using this 6x4 gigahertz band. So these are the few advantages and disadvantages of the signal when we are using 6x4 gigahertz band. So dear students, after it all, we have to discuss that why these are the things by which you are now aware that why we are preferring this standard 6x4 among the 3. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से हमें ये तो पता लगे कि क्यों रीजन है कि प्रेफरेंस हम देते हैं 6x4 को, और फिर अब हम जानेंगे why the downlink frequency is kept lower comparatively to uplink frequency. So let me write the name of the topic first. The reason for the downlink frequency to be lower than the uplink frequency. First is output power amplifier in transponder. See, the topic is reasons why we are going to get the downlink frequency low comparatively to uplink frequency. आप किसी भी स्टैंडर्ड को आप देखिए, whether it may be by 6x4, whether it may be 14x12, whether it may be 30x20, in all of them, the downlink frequency that is kept low, 12, 4 or 20, comparably to uplink 14, 6 और 30, इनके कंपैरेबली हम लो रखते हैं। तो उसका रीजन ही यहां पे हम समझेंगे। इन दैट द फर्स्ट रीजन इज आउटपुट पावर एम्पलीफायर इन ट्रांसपॉन्डर। द स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपॉन्डर है मैंने बताया था, दैट ट्रांसपॉन्डर इज अ डिवाइस
that basically receives the signal and transmit it back. And this is also heart of the satellite का ये heart है. तो इस केस में जो ट्रांसपॉन्डर होता है that is able to generate high power at lower frequencies. It generates high power at lower frequencies. I have told you we are in need of high power. High power के में रिक्वायरमेंट है, तो हाई पावर ट्रांसपॉन्डर जनरेट कर पाएगा एट लोअर फ्रीक्वेंसीज. तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे हायर पावर जनरेट नहीं हो पाएगा. पावर विल बी जनरेटेड पावर विल बी मच लो, और पावर जनरेट अगर कम है, लो है, तो देयर विल बी इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास हाई पावर की, तो कंडीशन शुड बी कि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी शुड बी लो. डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को क्या होना, दैट शुड बी केप्ट. दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकंड रीजन इज effective area of the receiving antenna. जो इफेक्टिव एरिया होता है डिस्टेंस, that is proportional to the square of the frequency. Okay, got it. We all know कि जो इफेक्टिव एरिया होता है एंटीना का, मैंने एग्जांपल दिया था कि इफेक्टिव एरिया किसको हम समझेंगे. जैसे ये हमारे बोर्ड है, ये हमारा ग्रीन बोर्ड हमें दिख रहा है, विजिबल है. इस केस में अगर बोर्ड की मैं डायमेंशन लूं तो डायमेंशन पूरा काउंट होगा. ये जो मार्जिन है यहाँ पे जो आपको आई थिंक विजुअल नहीं होगा, लेकिन एल्युमिनियम की शीटें लगी हुई है, इधर भी लगी, इधर भी लगी, इधर भी लगी, इधर भी लगी. तो जब डायमेंशन काउंट होगा बोर्ड का तो पूरा ही काउंट होगा. इधर ये डायमेंशन मतलब टोटल एरिया निकाल के इसमें से ग्रीन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इसकी स्ट्रिप की एरिया निकल जाएगी. तो अगर हम इफेक्टिव एरिया की बात करें तो टोटल एरिया में से जो स्ट्रिप ये लगे हुए हैं यहाँ पे एल्युमिनियम के, इनको माइनस कर दो तो इफेक्टिव पोर्शन मिल जाएगा. क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, यहां पे मैंने लिख दिया, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द बोर्ड. आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, बट दिस पार्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बोर्ड. है तो इसी का पार्ट, डायमेंशन तो इसी को काउंट होगा, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव. कोई इफेक्टिव पोर्शन नहीं. गॉट इट? तो जैसे ये वॉच ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, ये वॉच ले लिया. अब वॉच में अगर मुझे टाइम देखना हो तो मैं यहाँ इसके स्ट्रिप पे तो देखने नहीं जाऊंगा कि यहाँ मैं देख के बता दूंगा. इफेक्टिव पोर्शन क्या है? जितना दूर इसका है सर्कुलर पार्ट, यही तो इफेक्टिव है ना. टाइम यहीं से तो दिख रहा है हमें, तो इफेक्टिव पोर्शन यही है, लेकिन है तो ओवरऑल ये पार्ट वॉच का है. सिमिलरली तो हम कहते हैं जो इफेक्टिव एरिया होता है स्टूडेंट्स, that effective area is proportional to the square of the frequency. फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. अब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर हो तो इफेक्टिव एरिया will also get increased, और अगर इफेक्टिव एरिया बढ़ेगी तो ओवरऑल एरिया is also get increased, वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कांसेप्ट से. तो आपकी रिक्वायरमेंट एंटीना की साइज की that will also increase, वो भी इंक्रीज हो. क्योंकि अगर हमें सिग्नल चाहते हैं हम कि सिग्नल जो है वो मैक्सिमम रिसीव हो, तो उसके लिए हमें एरिया भी क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा. अब अगर ये चौक है और इसको सिग्नल रिसीव करना है तो नो डाउट दैट विल बी लेस. और अगर हम कहें कि ये डस्टर है और इसको अगर दोनों की हम बात करें कि सिग्नल कौन रिसीव करेगा ज्यादा, तो नो डाउट डस्टर में, क्योंकि इसकी साइज एरिया क्या है ज्यादा, इसकी साइज एरिया कम है. लेकिन उसके साथ हम क्या देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो साइज भी बढ़ जाती है.
अब साइज इतने बड़े बड़े एंटीना को तो हम माउंट कर नहीं सकते घर पे, वही घर 2 कमरे का एंटीना हमारे 5 कमरे का ऐसा कर नहीं सकते। घर 2 कमरे का तो एंटीना की साइज बिल्कुल ही जितना हम देखते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स घर हमारे डायरेक्ट होम सर्विस वाले एंटीना लगे होते हैं, डीटीएच वाले जो एंटीना लगे होते हैं, तो एंटीना की साइज हमें क्या करना है, रेड्यूस करना है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी हमें क्या रखना होगा, लो रखना होगा। एंड दैट बिकम आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज केप्ट लो, क्योंकि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ही वो है जहां पर सिग्नल वहां पे रिसीव होता है, तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी शुड बी केप्ट लो। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को कम रखते हैं। सो द थर्ड वन इज पाथ लॉस। तीसरा रीजन बनता है पाथ लॉस। डियर स्टूडेंट्स, if the frequency is low the path loss will also be low। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पाथ लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने एग्जांपल क्लास में भी यही दिया था और सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर में भी आपको देना चाहता हूँ। जैसे पाथ लॉस का एग्जांपल आप रिलेट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पाथ लॉस की वैल्यू मतलब पाथ लॉस कम होगा लो फ्रीक्वेंसी पे, अब पाथ लॉस हाई होगा हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, स्पीड आपकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और किसी गली में आपको मुड़ना है, तो देयर इज मोर चांसेस कि आप वो रास्ता भूल जाए, पाथ से लॉस हो। और अगर आपकी बाइक की स्पीड कम है तो लॉस होने की संभावनाएं भी कम है। स्पीड कम है, आप एक गली को देखते हुए जा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गली छूट भी जाए। तो सिमिलरली बाय दैट एग्जांपल यू कैन रिलेट द पाथ लॉस फॉर द लो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो लो, और हाई फ्रीक्वेंसी पे पाथ लॉस की संभावना बढ़ जाएगी। तो इफ इन द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू कीप द फ्रीक्वेंसी टू बी लो, द पाथ लॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ लॉस or the chances of the path loss is also becomes low. And the third one is beam width. So if we are talking about this beam width, so at lower frequencies the beam width is wider. और अगर बीम की विड्थ वाइडर हो तो कवरेज एरिया विल आल्सो बिकम लार्ज। और बीम की विड्थ नैरो, लेट्स सपोज दिस इज वन ऑफ द केस, and this is one of the case। इस केस में बीम की विड्थ इज वाइड, इस केस में बीम की विड्थ इज नैरो कंपैरेबल टू दिस। यहां बीम की विड्थ नैरो, यहां बीम की विड्थ वाइडर। तो कवरेज एरिया की अगर हम बात करें तो नो डाउट इन दिस केस जहां पे बीम की विड्थ वाइडर है उस केस में कवरेज एरिया में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और इस केस में कवरेज एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये केस कब बन रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो बीम की विड्थ होती है दैट बिकम्स वाइड, और हाई फ्रीक्वेंसी की बीम की विड्थ क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो हमें लार्ज कवरेज एरिया चाहिए, फॉर दैट हमें बीम की विड्थ वाइड रखनी होगी, और बीम की विड्थ अगर आपने वाइड रखनी है तो फॉर दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी लो। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the 4 points by which we come to know कि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 6/4 में 4, 14/12 में 12, 30/20 में 20 कि क्यों हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं कंपैरेबली टू अपलिंक फ्रीक्वेंसी। We can't put the same frequency like 6/6, 4/4, 14/14 और 30/30 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाती है उस केस में सिग्नल का इंटरफेरेंस होने लगेगा कि जिस सिग्नल पर हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी पे अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर हमारा सिग्नल रिसीव हो रहा है तो दोनों फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, एंड देयर विल बी इंटरफेरेंस एंड देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन। उसी फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यून कर रहे हैं जिस पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी पे ट्यून करके हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं,
interference के chances will be much and much. That's why we generally differ the uplink and downlink frequency. और उसमें भी डिफरेंस कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ज्यादा रखेंगे और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम कम रखेंगे. So these are the reasons why we kept this. So today, in today's lecture, we come to know the advantage and disadvantage of the standard which we are following, that is 6/4. Along with it, we come to know the reason for keeping the downlink frequency to be low. So this is all for today. I hope you come to understand what I have taught to you. If you have any doubt, you can directly ask to me. So thank you so much for today. Thank you, dear students. Thanks so much.